Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss Kingdom Munera, chapter number 6, and this is my lecture 2 because some of aspects we have already discussed in my first lecture. Today we will discuss the diversity, occurrence, nutrition, respiration, locomotion, growth and reproduction, all about bacteria. So what is diversity? Diversity, it means variation of different characteristics. The diversity refers to the existence of variation of different characteristics in a group of organisms. These characteristics could be everything there that makes them unique, such as traits to describe or the identity. So we can say that what type of bacteria occurs and the history or the diversity or different forms of bacteria. So firstly, bacteria was divided into two groups, archaeobacteria and eubacteria. So what is the difference between archaeobacteria and eubacteria is that archaeo is the term derived from the Greek word archaeos, it means ancient, यानी कदीम बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया पास्ट में या बहुत तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड बैक्टीरिया थे, उनमें और आज के बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है. सो आर्कियोबैक्टीरियाज are believed to be the oldest form of organism, about 3.5 billion years old. These are the most ancient bacteria found in the most extreme habitats such as salty areas, hot spring and marshy areas. These bacteria were found in extreme climate condition, यानी बहुत ज़्यादा जो है हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा गर्म पानी के चश्मे, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज में ये बैक्टीरिया पाए जाते थे. Archaeobacteria can be spherical, rod-like, spiral, lobed, rectangular or irregular in shape. और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? दे वर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, यानी ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करने की एबिलिटी रखते थे. सो द सेल वॉल ऑफ द आर्कियोबैक्टीरिया वाज डिफरेंट देन द सेल वॉल ऑफ टुडेज बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, बिकॉज इनकी सेल वॉल जो है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग थी और इसमें इस तरह केमिकल्स थे कि ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि सॉल्ट है, जैसे कोई टेम्परेचर है, उसको रेजिस्ट कर सकती थी. आर्कियोबैक्टीरियाज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन सब ग्रुप्स. इनके 3 सब ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीम हैबिटेट्स. द मिथेलियनिक बैक्टीरिया यानी जो मार्शी एरियाज में पाए जाते थे वो मेथोजेनिक कहलाते थे, जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते थे वो हेलोफाइल्स, और जो बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में पाए जाते थे उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स. So eubacteria, as you know that the U term indicates that the true bacteria. So these bacteria are known as true bacteria, और इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी होती है. They move by help of flagella. A few bacteria contain short appendages known as pili, which help during the reproduction, or you can say that genetic recombination, and also it helps to attach with the pathogen or host. So eubacteria classified according to their shapes. They may be bacilli, they may be spirala, they may be cocci, or according to the requirement of oxygen. Yani you can divide on the basis of their shape, or also you can divide on the basis of their oxygen requirement. They may be obligate aerobes, they may be anaerobes, or they may be facultative aerobes, or we can also divide them on the basis of their nutrition. So we will study all the aspects that according to nutrition they may be chemosynthetic, they may be photosynthetic. और अगर हम इनकी सेल वॉल की तरफ आए तो सेल वॉल में ये दे मे बी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दे मे बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो हियर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. यानी आर्कियोबैक्टीरिया लिव इन हार्श एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत गर्म पानी के चश्मे हैं, सॉल्ट लेक्स हैं, वॉल्केनिक डीप सीज हैं, या पीएच अच्छा खासा हो वहाँ रहते हैं, या हीट में रहने वाले बैक्टीरिया हैं जो कि आर्कियोबैक्टीरिया हैं. और इनमें भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है या डीएनए है, और लेकिन वो डिफरेंट है देन द यूबैक्टीरिया.
और मोस्टली जैसे मैंने पहले बताया कि ये ऑटोट्रॉफ हैं और इसके साथ साथ ये एनारोब्स भी हैं और कीमोसिंथेटिक भी हैं। जबकि जो आर्कियोबैक्टीरिया का डिफरेंस है वो यू बैक्टीरिया से ये है कि ये आप लोग अब हम देखते हैं हमारे पास जो कॉमन बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया है, और ये अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ शेप इनको क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि कॉक्साई है, बेसिलाई है और स्पाइरुला है। और साथ साथ ये या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जिसमें कि अगर हम स्टेन करते हैं तो इसकी सेल वॉल जो है जिसमें टिकोइक एसिड मौजूद है तो वो पर्पलिश या डार्क पिंक शेड का आ जाता है, उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिसमें टिकोइक एसिड नहीं है, सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन्स हैं और कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि वो कलर नहीं लेता या जो हम क्रिस्टल वायलेट उसको स्टेन देते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करता। साथ साथ की न्यूट्रिशन, यानी ये हमारे पास मोस्टली ऑटोट्रॉफिक हैं, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं और इसमें कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, और इनमें मूवमेंट जो है वो फ्लैजिला के जरिए होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस द अक्रेंस, यानी कहाँ पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया की जो है एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो you can see that they live in almost all type of habitat. You can see this is a bacteria in water, bacteria in air, bacteria in hot spring, or you can also observe bacteria in sea water. They are also present in the soil, they are also present in the air, they are also present in the water. So some are adapted to extreme such as hot or very cold conditions, and also they can absorb the high pressure and high radiation of environment. Bacteria are found on earth, like I have told you, that soil, air, water, rocks and hot spring, everywhere. Some bacteria live as parasite or as a mutualistic on the organism like plants, animal and human beings. So we can say that bacteria is present everywhere or they are omnipresent. Now we will discuss the most important aspects of bacteria, which is nutrition. Yani bacteria, like all other organism, also required energy, or they are living and living cells. You know that they need carbohydrates, protein, lipid for their structural, for their functional and other aspects or biochemical processes. So bacteria also need all these molecules in large or in small quantity. So we will discuss the nutrition. So here's a according to nutrition, bacteria divide into two groups: autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, auto as you know that means self, trophic means feeding. So those bacteria which can prepare their own food material known as autotrophic, and they again categorize into two types: photosynthetic. As you know that photo means light and synthetic means to synthesize, to build, to make, to manufacture. So ये बैक्टीरिया सनलाइट की मदद से अपनी खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक और टाइप भी है नोन एज कीमोसिंथेटिक, यानी ये मुख्तलिफ केमिकल्स को लेकर अपनी खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक जो है बैक्टीरिया कैन बी फोटोसिंथेटिक और कैन बी कीमोसिंथेटिक, while heterotrophic bacteria, hetero या hetero means on different or on others, trophic means feeding, तो ये बैक्टीरिया दूसरों पर डिपेंड करेंगे अपनी खुराक के लिए। इसमें हमारे पास है पैरासिटिक, यानी वो बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहेंगे वो पैरासिटिक हैं, और सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक, यानी वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट्स का या एनिमल्स पर डिपेंड करेंगे वो है सेप्रोट्रॉफिक। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और कैटेगरी है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ रहेंगे, उनको हम कहते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, जब फोटोसिंथेसिस की बात आती है तो हमारे जहन में आता है कि लाजमी इन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होगा, और जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि दे आर प्रोकैरियोट और इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है, यानी इनमें कोई ना कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ज़रूर है जो कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिल से चेंज है।
So special type of bacteria that contain light absorbing pigment and reaction center which make them capable of converting light energy into chemical energy. We will discuss photosynthetic bacteria. फोटोसिंथेटिक, फोटो मीन्स लाइट, एज यू नो दैट। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हमारे जहन में यकीनन ये आता है कि जो हमारे पास एक ऑर्गेनिल है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, उसमें ही एबिलिटी है कि वो सनलाइट को कैप्चर करे और कन्वर्ट करे इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि इन बैक्टीरिया के पास भी कुछ ऐसी ही कोई चीज़ है, लेकिन चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, तो इसका क्लोरोफिल बेरिंग जो ऑर्गेनेल होगा वो डिफरेंट होगा देन द क्लोरोप्लास्ट जो हम प्लांट्स में पढ़ते हैं। सो बैक्टीरिया कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल और उसको हम कहते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल। बैक्टीरिया दैट कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल डू नॉट यूज वाटर। अब जो हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज होता है और हमारे पास ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन निकलती है, जबकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल है ये वाटर को एज अ सोर्स या एज अ हाइड्रोलिसिस के लिए नहीं यूज करता, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एमल के लिए, इसको रिडक्शन के लिए वाटर यूज नहीं करता। इंस्टेड इट विल यूज सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ और जो है चीजें इस्तेमाल करेगा। सो एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर उसको यूज नहीं करेगा एंड देयरफॉर डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये वाटर को एज अ सोर्स नहीं लेगा। सो दिस बैक्टीरिया आल्सो नोन एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं। और ये दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, इनमें है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। अब इनमें होता है क्या, यहाँ देखिए ये आपको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया नजर आ रहे होंगे और यहाँ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं और यहाँ एक पूल नजर आ रहा है जिसमें भी आपको बैक्टीरिया की अच्छी खासी कंसंट्रेशन नजर आएगी। सो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करेंगे, दीज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैव द पिगमेंट नोन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। वो इनकी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी थाइलोकाइड के मेम्ब्रेन में मौजूद होगा और बैक्टीरिया कंटेन जो है सल्फर जो है लेगा कंपाउंड। और इस तरह के हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं जिसको हम थायोस्पाइरलम और बहुत सारे हैं बैक्टीरिया टाइप्स में हैं, क्रोमेटियम है बैक्टीरिया है, ट्यूपोडिया है और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो ये लेते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज जैसे कि प्लांट में ली जाती है, लेकिन यहाँ वाटर जो है एज अ सोर्स या ऑक्सीजन के लिए हम जो है ये करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे और फिर लाइट्स जो है सनलाइट लेंगे तो ये बनाएंगे यहाँ पे इनका ग्लूकोज है या ट्रायोज या टेट्रोज शुगर बनाएंगे और प्लस में ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ निकाल रहे हैं। या फिर इनका सिंपल रिएक्शन होगा जिसमें कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। साथ साथ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया भी हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे, एज अ हाइड्रोजन डोनर यूज करेंगे और ये लाइट की मौजूदगी में ये काम करेंगे और इनको हम कहते हैं बैक्टीरियो वायरोडिन या बैक्टीरियो फ्योफाइटिन कहलाएगा और ये क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहलाएगा। ये उन बैक्टीरिया में है जहाँ के फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक की। कीमो मीन्स केमिकल्स मुख्तलिफ तरह से, जैसे कि ये बैक्टीरिया जो है मुख्तलिफ केमिकल्स यूज करेंगे, ये ऑक्सीजन ये लाइट यूज नहीं करेंगे। सो दिस बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर लाइट इन लेक ऑफ द लाइट फेज बट हैव द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस में डार्क फेज होती है यानी लाइट इंडिपेंडेंट फेज होती है, ये इस तरह से करेंगे। दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से ये मुख्तलिफ जो है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेंगे। इनमें हमारे पास है सल्फोमोनास बैक्टीरिया, यहाँ देखिए यानी ये जो है ये ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ये सल्फर यूज कर रहा है, ये सल्फोमोनास बैक्टीरिया है। ये आयरन बैक्टीरिया, ये आयरन यूज कर रहा है। ये अमोनिया या नाइट्रेट्स यूज कर रहा है, तो ये नाइट्रेट्स यूज करने वाला बैक्टीरिया है, इनको हम नाइट्रोसोमोनास कहेंगे। इस तरीके से मिथेन यूज करने वाले बैक्टीरिया को मिथेनोसोमोनास कहेंगे और आयरन बैक्टीरिया या फेरस यूज करने वाले को फेरोमोनास बैक्टीरिया कहा जाता है। इस तरह से हमारे पास एक और कैटेगरी भी हम कहते हैं कार्बन बैक्टीरिया, जो कार्बन को एज अ सोर्स ऑफ जो है एनर्जी यूज करेगा ताकि उससे वो अपनी खुराक प्रिपेयर कर सके। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी वो ऑलरेडी जो फूड बना होता है यानी रेडीमेड फूड है वो लेते हैं
और इनमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, एज यू नो दैट सैप्रोब्लव्स की मीनिंग ये है कि ये डिके करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को, सो ये उस डिके से अपनी खुराक लेंगे। यानी कि सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर सच एज लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एनिमल फेसेस एंड लेदर एंड ह्यूमस वगैरह से लेंगे। दिस बैक्टीरिया सीक्रेट सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द फूड मटेरियल एंड टू एब्जॉर्ब। These enzymes secreted to break down the complex जो कार्बोहाइड्रेट्स ये लेंगे उनको ये ब्रेक डाउन करेंगे। ये एंजाइम्स और प्लस में जो प्रोटीन्स रहते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इजीली इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो है हैव द ऑब्वियस बेनिफिट of returning nutrients like iron, phosphorus and calcium to the earth। अब सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो हमारे पास हैं जो कि प्लांट के डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये प्लांट से जो कैल्शियम, जो फास्फोरस, जो आयरन निकलेगी वो दोबारा इसको जो है देंगे, एटमॉस्फेयर में देंगे। सेकेंड हमारे पास कैटेगरी हम कहते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहेंगे, यानी दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट on which they grow. They may be harmless or sometimes they cause serious diseases. So parasitic bacteria which cause various diseases known as pathogenic bacteria। और ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि पैथोजेनिक हैं और ये इंसानों में या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में बीमारियां करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस अमूनी है, क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक है, वाइब्रू कॉलरा है जिसे आप कॉलरा या हैजा कॉमन आप जानते हैं उसको, स्लैमनेला टाइफी है जो कि टाइफाइड करता है। इस तरह से और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम है जो कि आप हाजमा ख़राब करता है, इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया है। तो ये वो बैक्टीरिया है जो एज अ पैरासाइट इंसानों में रहते हैं और उनको बीमार करते हैं। अभी हम बात करते हैं एक और बैक्टीरिया की जो कि है सिम्बियोटिक बैक्टीरियाज, यानी सिम्बियोन्ट्स या म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया है जो कि दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहेंगे और दूसरे को फायदा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका प्लांट का एक ट्रिग है और इसकी जो आप देखते हैं कि इसकी रूट्स में ये नोड्यूल्स हैं, यानी एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर। इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद वो प्लांट जो है एज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल उसको यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म एज सिम्बियोन्ट्स। They are beneficial to the organisms. The common example are nitrogen fixation bacteria जैसे कि Bacillus radicula है, Bacillus azotobacter है, Rhizobium है, Clostridium है और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एज अ सिम्बियोट रहते हैं। This bacteria live inside the root of leguminous plants। leguminous plant जो फलीदार पौधे हैं उनकी रूट्स में ये रहते हैं और इस बैक्टीरिया फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into nitrogenous compound which are utilized by the plant. In return the plant provide nutrient and protection to the bacteria। यानी दोनों का फायदा है, प्लांट को ये नाइट्रोजन दे रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं जिससे प्लांट अपना प्रोटीन और मुख्तलिफ कार्बन पूरी कर रहा है और इसके रिजल्ट में या इसके जो है रिवर्स में प्लांट जो है उनको खुराक दे रहा है और बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम हार्ड और हार्श क्लाइमेट कंडीशन। ये हमारे पास कुछ म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया हैं जो कि पैथोजन के तौर पे भी रहते हैं और ये म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया हैं जो इंसानों में मौजूद हैं। इसमें क्या है, द म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया सेंड केमिकल सिग्नल्स टू द होस्ट अबाउट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड एंड द होस्ट प्रोवाइड ओनली दैट मच। सो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो नहीं होते, यहाँ वो मर जाते हैं क्योंकि वो उतना ही उनको खुराक मिलती है जितनी उनको चाहिए होती है। तो जो ये है म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया ये बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि हमारे गट में है बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलाई है, इसके अलावा हमारे पास इशरेशिया कोलाई बैक्टीरिया है, एंट्रोकोकस बैक्टीरिया है। ये हमारे बैक्टीरिया म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट में रहते हैं, यानी हमारी खुराक जब हम खाते हैं तो उनमें जो हार्मफुल आते हैं बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स उनको ये मार देते हैं और ये हमारी खुराक की डाइजेशन में मदद देते हैं।
अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। एज यू नो दैट रेस्पिरेशन क्या है, इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल विद द टिश्यूज एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी वी कैन से दैट इट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, or you can say that it is the process in which you exchange the gases. So in bacteria respiration में हमारे पास वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को लेते हैं ऑक्सीजन। सो रेस्पिरेशन यानी कार्डियक रेस्पिरेशन हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन लेते हैं, स्ट्रिक्टली जो है ऑक्सीजन ले सकते हैं और ऑक्सीजन ना हो तो डेथ हो जाएगी, वो हमारे पास कहलाते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। यानी एरोब्स बैक्टीरिया वो जो कि ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। और इस तरह के बैक्टीरिया जो बहुत थोड़ी मिकदार ऑक्सीजन की हो और वो सर्वाइव करें उनको हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक। और साथ साथ हमारे पास दूसरी कैटेगरीज यानी एनारोब्स, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन हो तो मर जाए, यानी वो ऑक्सीजन के ना होने से सर्वाइव करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पास फर्मेंटेशन के अमल में बड़ा फायदा देते हैं। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, यानी ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी अगर जरा सी भी ऑक्सीजन होगी तो ये मर जाएंगे, इनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ऐसे हैं कि जो थोड़ी सी ऑक्सीजन होगी तो कुछ सर्वाइव कर सकते हैं और अदरवाइज वो यानी हैं तो वो एनारोब्स ही। और साथ साथ हमारे पास है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो माइल्ड है, यानी वो आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ आपकी लेबोरेटरी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ देखें कि ये हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी इनको एनी हाउ ऑक्सीजन चाहिए तब ये सर्वाइव करेंगे। यहाँ देखें यहाँ पे पूरे के पूरे बैक्टीरिया इसके टिप पे आ गए कि ऑक्सीजन इनकी यहाँ पे इनको मिल रही है तो इसलिए यहाँ पे आ गए। इसके बिल्कुल अपोजिट देखें कि आप ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, यानी ये वो बैक्टीरिया हैं जो कुछ ऑक्सीजन की में मौजूद है और कुछ इनकी बेस में भी मौजूद है, यानी ये स्ट्रिक्टली जो है वो ऑब्लिगेट एरोब्स नहीं है, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ देखिए आप कि ये हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी इनमें अगर ऑक्सीजन हुई तो ये मर जाएंगे, ये सर्वाइव नहीं करेंगे, इसलिए ये सारे के सारे बेस में है कि इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जरा सी भी नहीं चाहिए, पॉइंट भी नहीं चाहिए। यहाँ देखिए ये है एरो टॉलरेंट एनारोब्स, यानी ये टॉलरेंट कर सकते हैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को ऑक्सीजन की, और ये पूरे के पूरे जो है आपको इस टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहे होंगे। जबकि यहाँ देखिए ये है माइक्रो एरोफिलिक, यानी इनमें ये बहुत थोड़ी रिक्वायरमेंट चाहिए ऑक्सीजन की, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जमा है कि यानी ये ना बेस में है कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, यहाँ ना ऊपर टॉप पे है कि यहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन है, ये इन सेंटर में है कि इनको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी ऑक्सीजन की चाहिए। तो ये है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोकोमोशन की तरफ से। आपको पता है कि लोकोमोशन क्या है? when any body or any organism move from one place to another place is called locomotion। अब हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जिनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है मूवमेंट करने के लिए, तो हम इनको कैटेगराइज करेंगे मुख्तलिफ तरह से कि किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो लोकोमोट करते हैं। Some bacterial cells are stationary, यानी वो एक जगह पे साकित रहते हैं। Stationary means to stay at rest or stay somewhere in a proper place. But most of them have a mean of getting around called locomotion, यानी अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए, शेल्टर के लिए और टेम्परेचर या मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इनको हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया लोकोमोट करते हैं। अब यहाँ देखिए कि फ्लैजिला हमारे पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद है और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो विदाउट फ्लैजिला होते हैं। अब हम कैटेगराइज करेंगे कि अगर फ्लैजिला है तो कितने टाइप के बैक्टीरिया कहलाते हैं, और अगर फ्लैजिला नहीं है तब वो अगर मूवमेंट शो करते हैं तो वो कितने टाइप की मूवमेंट होती है। सबसे पहला है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस क्योंकि ये टर्म निकला है ट्राइकोम से। ट्राइकोम यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी जिस तरह से बालनुमा स्ट्रक्चर्स हैं फ्लैजिला की, अगर वो मौजूद हैं तो वो ट्राइकोम कहलाता है या ट्राइकस कहलाता है। अगर वो नहीं है तो हम इसके लिए प्रीफिक्स लगा रहे हैं ए का, यानी ये ए ट्राइकस बैक्टीरिया है, यानी वो बैक्टीरिया जो विदाउट फ्लैजिला होंगे, इनमें फ्लैजिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैक्टोबैसिलाई है और डिप्थेरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे पास बगैर फ्लैजिला के होते हैं। अब यहाँ एक और कैटेगरी हम कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स वन, सिंगल,
यहाँ पे हमारे पास ये देखें कि ये एक सिंगल बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिला है और इसकी वजह से मूव कर रहा है। जैसे कि आपका वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरिया हमारे पास होता है, ये सिंगल ट्राइकोम या सिंगल फ्लैजिला इसमें है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास इसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मीन्स के बंच ऑफ फ्लैजिला है या टफ फ्लैजिला है, पूरा गुच्छा है फ्लैजिला का, उसके एक सिरे पर, एक एंड पर या एक पोल पर, उसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। फॉर एग्जांपल सीडोमोनास बैक्टीरिया में इस तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं। उसके बाद है एम्फीट्राइकस, ऐसा कि दोनों पोल्स पे बैक्टीरिया के फ्लैजिला हो, उसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। और इस तरीके से एक और कैटेगरी जिसे हम कहते हैं पेरीट्राइकस, यानी एंटायर जो सरफेस है बैक्टीरिया की, उसके किसी भी जगह पे यानी पूरी सरफेस पे फ्लैजिला मौजूद हो, इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं, ये है पेरीट्राइकस, यानी मल्टीपल फ्लैजिला फाउंड एट सेवरल लोकेशंस अराउंड द सेल। फॉर एग्जाम्पल बेसिलाई में इस तरह से होता है। अब ये कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया में फ्लैजिला होने की वजह से। अगर फ्लैजिला नहीं है तब क्या बैक्टीरिया मूवमेंट शो करता है? यकीनन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हमारे पास हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं है लेकिन फिर भी वो मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल उसे हम कहते हैं टैक्सिस, यानी जो है बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, सनलाइट और अदर, उसको हम कहते हैं टैक्सिस। तो टैक्सिस क्या है? यानी मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक लाइट और प्रेजेंस ऑफ फूड और टेम्परेचर और समथिंग, यानी जो बैक्टीरिया उस केमिकल्स या मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिज्म की तरफ मूव करते हैं वो हमारे पास टैक्सिस कहलाते हैं। स्टिमुलाई यानी वो चीज़ उनको हरकत करने पर मजबूर कर दे, उसको हम स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं, इसे मोहरिक भी कहते हैं। सो कीमोटैक्सिस बैक्टीरिया वो जो केमिकल की तरफ रिस्पॉन्स करेंगे यानी केमिकल की तरफ मूव करेंगे, उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। फिर हमारे पास है मैग्नेटोटैक्सिस बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म की तरफ जो है मूव करेंगे, इन रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिज्म इज नोन एज मैग्नेटोटैक्सिस। और फिर हमारे पास है फोटोटैक्सिस, यानी टुवर्ड्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट, अगर बैक्टीरिया हमारे पास लाइट के रिस्पॉन्स से मूव करते हैं तो हम उसको कहते हैं फोटोटैक्सिस। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, यानी टुवर्ड्स द लाइट एंड अवे फ्रॉम द लाइट। जो हमारे पास बैक्टीरिया लाइट की तरफ मूव करेंगे वो कहलाएंगे पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, और जो लाइट के सोर्स से दूर जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं नेगेटिव फोटोटैक्सिस। यहाँ आप देख सकते हैं ये है कीमोटैक्सिस बैक्टीरिया और ये है फोटोटैक्सिस बैक्टीरिया। और आप जानते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें एक है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये वही कैटेगरी है कि जो केमिकल की तरफ मूव होंगे, अट्रैक्ट होंगे और अपनी खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे ये फोटोटैक्सिस बैक्टीरिया है, यानी लाइट की तरफ ये मूव करेंगे ताकि इनको भी जो है लाइट का सोर्स मिले और ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकें। एक और एस्पेक्ट है बैक्टीरिया का जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ फॉर्म में कहा जाता है कि परमानेंट इंक्रीज इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर या इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, वो हमारे पास कहलाती है ग्रोथ। लेकिन बैक्टीरिया में क्या है कि बैक्टीरिया में हम ग्रोथ लेते हैं बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन पर, यानी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, इंस्टेड ऑफ इस साइज, यानी उसका साइज बड़ा होने से ज़्यादा हम लेते हैं कि वो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ग्रोथ ऑफ bacteria culture is defined as an increase in the number of bacteria in a population rather than its increase in size. So हमारे पास जो ग्रोथ है उसकी 4 फेजेस हैं बैक्टीरिया में। पहली फेज कहलाती है लेग फेज, और दूसरी फेज कहलाती है लॉग फेज, तीसरी कहलाती है स्टेशनरी फेज, और लास्ट फेज है जिसे हम कहते हैं डेथ और डेक्लाइन फेज। अब इन फेजेस में होता क्या है? फर्स्ट जो फेज है जिसको हम कहते हैं लेग फेज, इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज यानी इनएक्टिव फेज। इसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी वो केमिकल्स, वो एंजाइम्स जो रिक्वायरमेंट्स को चाहिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए, आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए या रेप्लिकेशन के लिए, उसके लिए उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। देन जो सेकंड फेज आती है जिसे हम कहते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन फेज या लॉग फेज। इसमें बैक्टीरिया अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई करता है या रेप्लिकेट करता है, उसकी तादाद, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। और उसके बाद आती है स्टेशनरी फेज। इस फेज में जो बैक्टीरिया है उसमें जितनी मल्टीप्लिकेशन होती है उसका डेथ रेट भी इक्वल होता है, यानी जितने बैक्टीरिया बन रहे होते हैं उसने ही इतने ज़्यादा यानी 50% अगर बन रहे हैं तो 50% मर जाते हैं। तो ये है स्टेशनरी फेज, यानी साकित फेज, स्टेशनरी टू स्टैंड स्टिल, के
रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रेट ऑफ डेथ विल बी इक्वल। अब नेक्स्ट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं डेक्लाइन फेज या डेथ फेज, यानी खत्म होने वाली फेज। इसमें मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा होगी उसकी डेथ, यानी बैक्टीरिया मरेंगे ज्यादा, पैदा कम होंगे या मल्टीप्लिकेशन में कम होगी। इसको हम ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक ग्राफ बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये लॉगरिथमिक ग्राफ है जिसमें वायबल सेल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और प्लस में हम देखते हैं कितने आवर्स में कितना सर्वाइवल है। यहाँ देखिए सबसे पहले ये लेग फेज, इस लेग फेज में बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स हैं, फ्यू सेल्स लिव हैं और ये अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ देखिए फौरन से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज आई है, इसमें देखिए कितनी ये इस पे इंक्रीज हुआ है, और ये सारे के सारे सेल्स सो ये बैक्टीरियल ग्रोथ हम कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन फेज जिसे हम कहते हैं लेग फेज, कुछ सेल यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, ये देखिए यानी ये इसमें प्रिपरेटरी फेज है। और नेक्स्ट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं लॉग फेज, इसको एक्सपोनेंशियल फेज है। यहाँ आप ग्राफ में देखें किस तरीके से ग्राफ एकदम से ऊपर गया है, यानी उसमें अच्छी खासी मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन हुई है बैक्टीरिया की, और तादाद बहुत अच्छी खासी बढ़ गई है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास ये कर्व जो है बिल्कुल एकदम से सीधा आगे हो गया है, यानी ये ना ही बढ़ रहे हैं तादाद, ना ही कम हो रही तादाद। यहाँ देखिए आप, ये डेड सेल्स हैं जो को इंडिकेट किए गए हैं ग्रे कलर से, और ये लिविंग सेल्स हैं। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पे 50% का रेशियो हो रहा है कि जो सर्वाइवल वाले सेल्स हैं वो और डेथ रेट इक्वल हो गई है। और उसके बाद आप देखेंगे एकदम से ये कर्व हमारा नीचे जाता है, ये ग्रोथ कर्व के। यहाँ देखिए आपके ये डेथ फेज जो है, ये इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं वायबल हैं, बाकी ये ज़्यादातर बैक्टीरिया मर चुके हैं, यानी ये इसमें इंक्रीज जो है नंबर ऑफ सेल्स वो कम है एज कम्पेयर टू डिक्रीज। तो ये हमारे पास ये ग्रोथ का कर्व है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ इस तरीके से आपके पास आवर्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एस्पेक्ट है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। Reproduction, as you know that it's a method for necessary for survival, for continuity of life। यानी दुनिया में हमारे पास अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो हमारी ये जिंदगी में बका है, चल रही है। सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन और ब्रीडिंग इसे कहते हैं हम, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जिसे हम ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं या न्यू इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ओल्डर वन या फ्रॉम द पेरेंट्स। सो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने तरीकों से होती है, या बैक्टीरिया में क्या क्या तरीके इस्तेमाल होते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं कि रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में है एसेजुअल, और दूसरा हमने सेजुअल की बजाय यहाँ नाम लिखा है जेनेटिक रिकम्बिनेशन का, क्योंकि बैक्टीरिया में सेजुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और उसकी बजाय वहाँ पे होता है बैक्टीरिया में जीनियात का रद्दोबदल, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जबकि एसेजुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास है बाइनरी फिजन, और दूसरा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जबकि ये भी एसेजुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ सर्वाइवल, नॉट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि बाइनरी फिजन हम पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से अपने आप को जो है बैक्टीरिया बढ़ाता है, और ये है एसेजुअल। इसमें जो प्रीफिक्स ए लगा हुआ है इसका मतलब है नॉट सेक्सेस, यानी सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये एसेजुअल है। जबकि जेनेटिक रिकम्बिनेशन के 3 तरीके हैं, एक है कॉन्जुगेशन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है ट्रांसडक्शन। ये वो तरीके हैं जिनके जरिए जीनियात अपने आप को एक्सचेंज करते हैं बैक्टीरिया में, और ये एसेजुअल और जेनेटिक रिकम्बिनेशन 2 तरीके हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के। पहला है जो हम कहलाते हैं बाइनरी फिजन, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, बाय मीन्स टू एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। और ये होगा जब फेवरेबल कंडीशन होंगी, यानी पानी, टेम्परेचर, जो रिक्वायरमेंट है, लाइट वगैरह जो भी चाहिए बैक्टीरिया को वो होगा, तो बैक्टीरिया अपने आप को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करेगा। किस तरह से? कि बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेजुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एंड ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट्स जेनेटिक मटेरियल और डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी अपना डीएनए पहले तो डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा फॉलोइंग विद द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। और अब जो 2 सेल्स बनेंगे उन दोनों सेल्स में डीएनए बैक्टीरिया की कॉपी मौजूद होगी, और ये जैसे मैंने पहले बताया कि इट विल अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। होगा क्या? यहाँ देखें कि ये सेल है, इसका न्यूक्लियोटाइड है मौजूद है, उसने अपने आप का डीएनए डुप्लीकेट किया है।
डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ देखिए आप कि ये सेपरेट होना शुरू हो गए, अपने मॉलिक्यूल्स जो है अलग हो गए, ये डीएनए अलग हो गया, ये डीएनए अलग हो गया। अब उसके बाद शुरू हुई है साइटोकाइनेसिस, या हम कहते हैं इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था मेसोसोम जो कि एक फोल्डिंग मेम्ब्रेन है या इनफोल्डिंग है जो कि सेल मेम्ब्रेन की है, या मेसोसोम ही काम देंगे जिससे कि सेल अपने आप को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इक्वली डॉटर सेल बनाएगा और दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, यानी वन सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, और ये बैक्टीरिया में एसेजुअल तरीका है। जबकि दूसरा हमारे पास है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जो कि है मेथड ऑफ सर्वाइवल। उसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, यानी अब एक और तरीका है जो कि हेडिंग में दिया जाता है अक्सर एसेजुअल की, जबकि ये मेथड ऑफ सर्वाइवल है। दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन। सो एंडो मीन्स इनसाइड या विद इन द सेल। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पोर इज अ डोरमेंट tough and non-reproductive structure produced in some bacteria. Dormant, dormancy हम कहते हैं, resting period को कह लें आप, sleeping period को कह लें, या inactive period को, यानी उसमें बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड नहीं करता, रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। सो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय द लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि एंडोस्पोर बनेगा ही तब जब आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो एडवर्स होंगी या फेवरेबल नहीं होंगी। एंडोस्पोर में क्या होगा, इन एंडोस्पोर फॉर्मेशन द बैक्टीरिया divide within its cell wall and one side then engulf the other, and then endospore enables bacteria to remain dormant for long period, even for centuries. ये जो एंडोस्पोर है इसके ऊपर जो वॉल होती है ये इतनी ज़्यादा हार्ड और टफ होती है कि ये उसको हर तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए मदद देती है, इवन सेंचुरीज में, यानी साल साल तक ये एंडोस्पोर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब इसको दोबारा फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, दोबारा ये रिवर्स होगा और फिर दोबारा ये अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू करेगा। जैसे कि यहाँ है कि ऑन रिवर्स ऑफ फेवरेबल कंडीशन द स्पोर जर्मिनेट एंड रिवर्स बैक to the normal vegetative form of the organism and continue its life cycle. तो यहाँ देखें आप कि ये डीएनए मौजूद है और यहाँ पर ये स्पोर ने अपने इर्द गिर्द सेप्टम वॉल बनाई, और यहाँ पे अब ये 4 स्पोर है और यहाँ पे ये इनगल्फ करेगा सारा एरिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें कि स्पोर की शक्ल आ रही है बाकायदा से, और इसके इर्द गिर्द पेप्टिडोग्लाइकेन्स जो ये लेयर है मेम्ब्रेन की, ये अब जो है सराउंड करेगी 4 स्पोर को। अब इसके साथ ये जो थिक रेजिस्टेंट वॉल है ये बनना शुरू हो जाएगी, और यूं ये स्पोर का कोट बनने के बाद ये फिर स्पोर जो है वो वहाँ से निकल आएगा और ये एंडोस्पोर जो है फ्री हो जाएगा सेल से, और ये अच्छे खासे लंबे अरसे तक सर्वाइव करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं हुई है, यानी अपने आप को बढ़ाया नहीं है, इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी है बैक्टीरिया की, सिर्फ और सिर्फ इसने अपने आप को बचाया है एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से। इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ मेथड ऑफ सर्वाइवल, नॉट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन जब ये दोबारा इसको मिल जाएंगे एनवायरमेंटल कंडीशंस तो ये दोबारा नॉर्मल रूटीन में बाइनरी फिजन है या और भी जो इसके प्रोसेस हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वगैरह वो करना शुरू कर देगा, तो अपनी लाइफ साइकिल दोबारा शुरू कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस आता है कॉन्जुगेशन, यानी जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है इसका मतलब है कि दो बैक्टीरिया विल एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, उससे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जैसे कि लफ्ज आपने सुना होगा कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स और टू एनी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर नोन एज कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ कॉन्जुगेशन का मतलब है कि दो बैक्टीरिया का साथ मिलना। So this process was observed by Lederberg and Edward Tatum in 1946. इन्होंने क्या देखा कि आपको पता है कि हमने पिली पढ़ा था कि पिली एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, यहाँ इस बैक्टीरिया में पिली है और इसमें पिली नहीं है। ये बैक्टीरिया कहलाएगा डोनर बैक्टीरिया और ये कहलाएगा रेसिपिएंट बैक्टीरिया, और इसको हम शो करेंगे F पॉजिटिव और F नेगेटिव से शो कर सकते हैं। इसमें अब क्या है कि ये बैक्टीरिया, यहाँ देखें इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है, जबकि यहाँ इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मौजूद है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए,
और ये प्लाज्मिड जो है ये बहुत सारे काम करता है बैक्टीरिया में भी, और इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं। तो अब क्या होगा कि व्हेन द F1 यानी डोनर बैक्टीरिया प्रोड्यूस द पिलस, यानी वो जो पिली है उससे एक कांटेक्ट करेगा साथ वाले बैक्टीरिया से, विच बिगिन कांटेक्ट विद एन F- या रेसिपिएंट बैक्टीरिया या सेल से। द पिलस या पिली एनेबल्स डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट सेल। अब यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है दोनों के दरमियान। So the mobile plasmid is nicked and a single strand of DNA is then transferred into the recipient cell। अब ये देखिए ये खुलना शुरू हुआ है, खुलने के बाद ये recipient बैक्टीरिया को अपना DNA दे रहा है। So now both the cells synthesize a complementary strand to produce a double-stranded circular plasmid and also reproduce pili। अब क्या होगा कि ये देखें कि जब इन्होंने ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाया और यहाँ से प्लाज्मिड ने अपना जेनेटिक मटेरियल इसको ये दे दिया, अब ये दोनों बैक्टीरिया वायबल हैं। न्यू देख लें या ओल्डर देख लें, दोनों में प्लाज्मिड मौजूद है, दोनों में पिलीज मौजूद हैं, और दोनों आगे जो है फर्टिलिटी के लिए एफ फर्टिलिटी को शो करता है। तो हम कहेंगे कि बोथ सेल्स आर नाउ वायबल डोनर फॉर द एफ फैक्टर। एफ फैक्टर क्या है? स्टैंड फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। अब ये यानी ये दोनों बैक्टीरिया आगे अपनी नई जो जनरेशन है उसमें ये जो प्लाज्मिड है यानी जो जेनेटिक मटेरियल है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको दे सकते हैं ताकि आगे जो है वो सर्वाइवल के लिए या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए वो इस्तेमाल हो। तो ये वो तरीका है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, यानी टू बैक्टीरिया एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ब्रिज और ट्यूब नोन एज पिली। अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कि अगर इसका फायदा नहीं है या इसका फायदा है तो क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है? थ्रू जेनेटिक ट्रांसफर बैक्टीरिया आर एबल टू गेन न्यू कैरेक्टर्स दैट अलाउज देम टू अडॉप्ट एंड दस सर्वाइव इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी जो कंडीशंस में वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, अब ये आराम से उन हार्श या एक्सट्रीम कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकेगा। So a good example of this include bacteria becoming resistant to antibiotics which allow them to continue thriving। अब ये इससे क्या होता है कि साथ जैसे हम कहते हैं नए नए स्ट्रैंड्स आ रहे हैं डेली, क्योंकि ये जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो वो उस बैक्टीरिया को दूसरे को भी रेजिस्ट करना सिखाते हैं, यानी वो रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक से और फिर लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है। एक और चीज की कॉन्जुगेशन हैज मेड इट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, यानी अब कितनी चेंजिंग आ रही हैं एवोल्यूशन में क्या है वो इजी हो जाएगा। और इन द प्रोसेस दे हैव आल्सो बीन एबल टू स्टडी दैट हाउ बैक्टीरिया स्पीशीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज एंड हैव इन टर्न मेड इट पॉसिबल टू डेवलप इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यानी फिर उसके खिलाफ हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी बना सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वाज ऑब्जर्व बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्ट। उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व किया। किस तरह से ऑब्जर्व किया ये हम इसमें पढ़ते हैं कि यहाँ देखें कि एक बैक्टीरिया लिया जिसे हम कहते हैं स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, जो कि एक कैप्सूल है इसके इर्द गिर्द और ये वायरुलेंट है। जब स्मूथ टाइप का इंजेक्शन बना के उन्होंने लगाया माउस में तो माउस बिकम डेड बिकॉज एस टाइप वाज द वायरुलेंट टाइप। ये नमूनिया कोकस बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इसको लगाने से रिजल्ट में क्या हुआ कि माउस वाज डेड। और इस तरीके से जब दूसरा जो इन्होंने स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया का जो कि है रफ टाइप यानी R2 टाइप, इसको माउस में लगाया तो माउस विल बिकम अलाइव, ही विल नॉट डाइड, इट विल नॉट डाइड, और ये बिनाइन रहेगा, यानी ये इसके जीनियात जो है वो उसको जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उसको डेथ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो था S3 टाइप, इसको हीट दिया, इसी को स्ट्रेन को हीट दिया। हीट देने से उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो है वो चेंज आया और वो इरवायलेंट हो गया। और अब यहाँ देखें ये बैक्टीरिया जो है वो इसको मार नहीं रहा, ये माउस विल रिमेन अलाइव। फिर क्या किया गया कि ये जो दो कंट्रोल थे यानी जो R2 टाइप था और जो S3 टाइप हीट किल था, इन दोनों को मिला के जब लगाया गया, यहाँ देखिए आप कि ये दोनों स्ट्रेंड्स को मिला के लगाया गया, तो अब क्या हुआ है कि जो S3 टाइप में जो कि वायलेंट टाइप था जो कि डेड कर था माउस को, उसका जो सब्सटेंस है वो ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू लिविंग R टाइप और अब वो कन्वर्ट हो गया इनटू S3 टाइप
और यूं अब ये माउस विल बिकम डेड, क्योंकि जो R2 टाइप है अब वो S3 टाइप में ट्रांसफर हो चुका है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये देखें कि ये हैं ABCD के यानी फ्रेगमेंट्स हैं DNA के, ये डोनर बैक्टीरिया के हैं, और यहाँ पे है रेसिपिएंट बैक्टीरिया इसमें मौजूद है। अब जब इसमें ये आएंगे, यानी ये जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया में जो डोनर बैक्टीरिया से जो जीनियात आए, तो अब यहाँ देखिए कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो गया। अब ये जीनियाती ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी वो बैक्टीरिया अब उस माउस को मार सकता है। सो हम कह सकते हैं अ हीट किल्ड वायलेंट बैक्टीरिया व्हेन मिक्स्ड विद नॉन वायलेंट बैक्टीरिया, द फॉर्मर जो पहले वाला है रिलीज DNA फ्रेगमेंट विच आर नाउ ट्रांसफर इनटू नॉन वायलेंट टाइप। अब यहाँ पे इसमें आ गए तो यकीनन ये भी वो वायलेंट हो जाएगा, यानी आप डेड ऑर्गेनिज्म से के जो जीनियात हैं वो अलाइव में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच सेल टेक अप फॉरेन DNA फ्रॉम द एनवायरनमेंट एट लो फ्रीक्वेंसी आफ्टर। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। ट्रांसडक्शन क्या प्रोसेस है? ट्रांसडक्शन वाज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग। और ट्रांसडक्शन में क्या है कि वन बैक्टीरिया विल ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अनदर बैक्टीरिया बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर और बाय द हेल्प ऑफ वायरस। जो वायरस है वो इस्तेमाल होगा इसमें, और वो उसका जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया की तरफ ले जाएगा। इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ देखते हैं हम कि ये है आपके पास बैक्टीरियोफेज वायरस, और ये है आपका बैक्टीरिया का यानी ये होस्ट है, या ये कह सकते हैं कि ये हमारा डोनर बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया से इस वायरस ने इस पे अटैक किया, इसके साथ इसके जीनिया जो है शामिल है। अब यहाँ पर अटैक करने के बाद यहाँ देखें कि ये आपका जो फेज वायरस है, इसने अब यहाँ कॉपीज बन रही हैं किसकी? जैसे हमने पढ़ा था लाइटिक साइकिल में। लाइटिक साइकिल में के बैक्टीरिया पर आके जो है वायरस अटैक करता है, और उसके जीनिया जो है वो यूटिलाइज करने के बाद यहाँ देखिए आपके सारे के सारे आपके पास फेज वायरसेस बनना शुरू हुए। अब ये फेज वायरस जो है ये चूंकि इन्होंने DNA यूटिलाइज किया है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भी यूटिलाइज किया है, तो ये वहाँ से जो बैक्टीरिया का जो हमारे पास ये डोनर बैक्टीरिया है उसका भी जीनियात ये लेकर आएंगे। लाने के बाद जब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया जिसको हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहेंगे उसमें ये जब ये अपना DNA इंसर्ट करेंगे या डालेंगे, तो यकीनन ये इस बैक्टीरिया के कैरेक्टर भी यहाँ तक लेकर आएंगे। सो ये प्रोसेस जिसमें वन बैक्टीरिया से सेकंड बैक्टीरिया तक, ये देखिए यहाँ पे ये डार्क कलर से शो किया गया है, तो when one bacteria transfer its genetic material to another bacteria by the help of virus or third vector or third party is known as transduction। इसमें क्या है देखिए आप कि फेज इंजेक्ट करेगा DNA को, और फेज एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगे होस्ट का DNA को, देन जो है सेल जो है वो क्रिएट करेगा कॉपीज किसकी? होस्ट DNA करेगा। उसके बाद ट्रांसडक्शन होगी और उसका DNA जो है इसमें डालेगा। फिर क्या होगा? डोनर बैक्टीरिया जो है उसके अंदर बैक्टीरियल जो डोनर जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसमें दोनों के जीनियात मौजूद होंगे। सो हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय मींस ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन देखना है, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है। फर्स्ट यहाँ देखिए बिल्कुल इजी है कि यहाँ देखें कि एक बैक्टीरिया है और एक वायरस है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस वायरस ने अपने जीनियात डाले यहाँ पे, आराम से जो भी इसके जीनियात हैं ये लेकर आएगा, यानी यहाँ पर ये ट्रांसफ़र करेगा इसके जीनियात यहाँ से लिए। ट्रांसलेशन क्या है? इस बैक्टीरिया के जीनियात इस बैक्टीरिया तक लेकर आना। अब यहाँ पे क्या है? वायरस ने अटैक किया, उसके जीनियात लेने के बाद यहाँ पर लेकर आ रहा है, और ये यहाँ तक आ गया। ये आ गया आपका डोनर बैक्टीरिया और ये आ गया रेसिपिएंट बैक्टीरिया। लेकिन हेल्प किसने की है? इस बैक्टीरियोफेज वायरस ने की है। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें वन बैक्टीरिया अपने जीनियात दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाए बाय द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी और वेक्टर विच इज वायरस नोन एज ट्रांसडक्शन। So you can say that in transduction DNA is accidentally moved from one bacteria to another bacteria by virus। ठीक है, यहाँ वायरस यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे ये प्लास्मिड है, ये अपना DNA जो है इसको दे रहा है साथ वाले में, ये डोनर बैक्टीरिया है, ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। लेकिन हेल्प कौन कर रहा है? यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब या पिल्ली के जरिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ उसका कैरेक्टर जा रहा है।
अब उसका तीसरा जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ देखिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, जैसे हमने पहले देखा कि जब उन्होंने हीट किल्ड किया बैक्टीरिया को तो वो डेड बैक्टीरिया हो गया, लेकिन उसके जीनियात तो मुकम्मल तौर पे नहीं मरे। अब उसमें वो जो जीनियात हैं वो ट्रांसफर हुए दूसरे बैक्टीरिया की तरफ, और यकीनन जब इसके जीनियात है तो ये वही काम करेगा जो कि ये जीनियात उसने लिए हैं। अगर ये वायलेंट था तो ये वायलेंट हो जाएगा, अगर ये वायलेंट था तो कुछ भी नहीं करेगा, अगर ये जो है इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इंसुलिन प्रोडक्शन के काम करेगा। जो भी काम वो इस बैक्टीरिया में हो रहा था वो यकीनन इसमें आएगा क्योंकि इसके जीनियात इसमें आ चुके हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया टेक्स अप द पीस ऑफ डीएनए फ्लोटिंग इन इट्स एनवायरनमेंट। सो ये 3 तरीके हैं जो कि हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। Hope you will understand this and you will follow all you will follow the chapters and you will read out the chapter thoroughly। और इसमें आप शॉर्ट आंसर्स भी इसमें जो है आप निकालेंगे, इसमें से देखेंगे, और इसमें आपको एमसीक्यूज भी आराम से आपको याद हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे जो कि प्रोकैरियोट पे है, नॉस्टॉक, या हम कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया, वो हम कंटिन्यू करेंगे। होप यू ऑल विल बी फाइन and we will continue with the next lecture. Thank you so much.